So today morning we are discussing about uh, the ecosystem and the levels of ecosystem. And yesterday we have discussed that current environmental challenges, the river issue, water issues. आज सुबह हमने वही पढ़ा ना इकोसिस्टम लेवल ऑफ इकोलॉजी। बाद में मटेरियल भेजा था मैंने, मिला आपको? हैव यू चेक मेल? हाँ। ओके। यस। तो सु हाँ। आज मॉर्निंग में हम लोग ये इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी का सब्जेक्ट पढ़ा था। तो अभी क्या करेंगे, उसी करंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस का जो थोड़ा बहुत पार्ट्स है उसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। तो लास्ट क्लास जो हमने पढ़े थे थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। जस्ट रिमेंबर व्हाट आर द थिंग्स दैट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इशू, वाटर रिलेटेड एनवायरमेंटल इशू। तो लेट्स समराइज। there are different types of dams that are constructed over different river for different purposes, and due to construction of the dam in the river there are several types of benefits as well as disadvantages are there. What are the major benefits? Major benefit is the supply of drinking water as well as water for irrigation purpose. Next advantages is flood control, drought control, all these things. And next is hydroelectric power generation. You can generate hydroelectricity with the it is the better for our environment, because hydroelectricity is the green energy. It cannot be pollute to our environment. Consider other consequences that in thermal power plant we have generate a lot of amount of carbon dioxide, sulfur dioxide, and nitrogen dioxide. In this regarding, there are several dams are built, like the major dams are Sardar Sarovar Dam that is built over Narmada River. Next dam is called Tehri Dam, which is built in Bhagirathi River. Another dam is called Alamati Dam, which is built in Krishna River. Another dam is called Hirakud Dam, which is built in Mahanadi River, like that. And last class also we have also discussed about the Kaveri River issues, that how the Kaveri River is dying and what is the major concern that we can take in for the mitigation or the regeneration of the Kaveri rivers. For we can what is the major step, that is tree plantation on the side of the river bank side. चारों तरफ क्या करेंगे, हमें ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके ट्री प्लांटेशन करेंगे. दैट्स व्हाई द रिवर कैन नॉट बी ड्राई इन द समर सीजन. So these are the different rivers, but we just have another two rivers our in our course of study. We can, that is a major river that is called Ganga River. आपने सुना होगा गंगा रिवर के बारे में? हाँ, तो गंगा रिवर को मतलब उसके बारे में क्या आपको आइडिया है? कैन यू टेल व्हाट इज द आइडिया बेसिक, व्हाट इज गंगा रिवर, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट? हाँ हाँ. ओके. ओके. हाँ 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 हाँ. हम्म हम्म. हाँ. Obviously, obviously. Yes, there are two major issues. One is called the purity of the Ganga River. This is in our mythology also there is an importance of the Ganga River. कोई भी आदमी जो भी उसका मौत होने के बाद क्या होता है, गंगा में अस्थि विसर्जन करेंगे तभी उसका आत्मा का शांति मिलता है. दिस इज द माइथोलॉजी स्टोरी पार्ट. एंड दिस इज साइंटिफिकली प्रूव दैट, ऐसे कि आपने बोला कि उसका पानी को बहुत दिन स्टोर कर सकते हैं. एंड प्योरिटी ऑफ द वाटर इज वेरी मच pure because the rivers originates from the Himalayas, glaciers of the Himalaya, and these Himalayan glaciers are melting throughout the year. Means this is perennial river. ये दिन क्या होता है, बारिश के टाइम पे हो या ना हो, गर्मी हो सीजन हो, पूरा थ्रू आउट द ईयर द वाटर रिमेन्स इन द रिवर, flowing through the river, and this water is used by the cities, that villages these are besides on the bank of the river.
जितना भी सारे रिवर के साइड में जो भी सिटीज है, जो भी है इंडस्ट्री सेटअप है, सारे दी कैन यूटिलाइज द वाटर ऑफ द रिवर। एंड ऑल्सो स्पिरिचुअली वी आर गोइंग टू विजिट द रिवर, तो बाय क्या करने के लिए, अस्थि विसर्जन करने के लिए हम लोग जाते हैं वहीं पे। दिस इज डिफरेंट पार्ट्स। Another consequences of this utilization of this river water is the, we cause directly knowing unknowingly we cause the pollution, or we pollute the river of water, and the holiness of the river or water that can be degraded gradually whenever it flows from the Himalaya to the बे ऑफ बंगाल। ऊपर से हिमालय से जो बे ऑफ बंगाल तक आता है, तो हम लोग कहाँ पे जाते हैं, गंगा गया जाते हैं और ऋषिकेश जाते हैं शायद, ऐसे मतलब होली विसर्जन करने के लिए। हम लोग इधर क्यों नहीं जाते हैं, हुगली रिवर आपका जो बे ऑफ बंगाल है इधर है ना, वहां पे क्यों नहीं जाते हैं? बिकॉज वहां पे जो होलीनेस है वो धीरे धीरे जब आता है बे ऑफ बंगाल में, तब तक वो खत्म हो जाता है। दैट मीन्स द वाटर गेट पॉल्यूटेड इन दिस रीजन। तो ये पॉल्यूशन कौन करता है? वी आर द पीपुल और द ह्यूमन। मोस्ट ऑफ द पॉल्यूशन दैट कैन बी कॉज ड्यू टू द इंडस्ट्रियल सेटअप बिसाइड द प्लांट, बिसाइड द बैंक ऑफ द रिवर। जो भी मेन इंडस्ट्री है ना, वो लोग ज्यादातर जिम्मेदार हैं ये लोग पॉल्यूशन करने के लिए। अनदर मेन रीजन इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज आर एंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी। ज्यादातर बड़े बड़े शहर जो है, इलाहाबाद, कानपुर, जो भी है, बनारस, सब सारे सिटीज जो है रिवर बैंक में है। एंड ऑल द सीवेज पॉल्यूशन, जितना भी वहां का नाली का पानी, घर का पानी, सीवेज का पानी, जो भी लेट्रिन का पानी सब आता है, सब छोड़ते हैं नदी में। दैट इज द मेजर पॉल्यूशन। एंड थर्ड मेजर पॉल्यूशन इज वी जस्ट throw our dead bodies in the river Ganga that can degraded in the river। ये होता है तीन मेजर रीजन फॉर पॉल्यूशन ऑफ द रिवर, गंगा रिवर का। क्या बोल रहे थे? यस, यस। एक्चुअली ये प्रथा है कि जो मर जाता, अभी नहीं है, अभी थोड़ा एजुकेटेड हो गए लोग। पहले क्या था, जो मरता था उसको बर्निंग नहीं करके डायरेक्ट गंगा नदी में फेंक देते थे। बोलते हैं कि उसका अस्थि उधर ही मिल गया, तो और आत्मा उसका मिल शुद्ध गति मिल गया, ऐसे उसका थिंकिंग था। लेकिन बाद में उसको बैंड कर दिया गया अभी, और पहले बर्निंग करते हैं, फिर आस को वहीं पे जो है, जो उसको विसर्जन करते हैं, जो अस्थि को थोड़ा सा। लेकिन पहले पूरा थ्रू आउट डेड बॉडी को विसर्जन करते थे रिवर में। सो दिस प्रैक्टिस हैज बीन रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट रूल्स। अभी वहां पे डायरेक्ट ऐसे कोई नहीं कर सकता है। But this river Ganga and are getting polluted. The water of the river is getting polluted day by day, and who is responsible for pollution? Or we are humans are responsible for the pollution. So government has made some regulation to clear the water and to remain intact the holiness of the river Ganga. That is called Ganga Action Plan. That is called Ganga Action Plan. What is the meaning of plan? कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब हाउ गंगा कैन बी क्लियर और द होलीनेस कैन बी रिटेन्ड। एक्शन मीन्स रैपिड, तुरंत। ऐसे नहीं है कि आज प्लान बनाया हम लोग ने 100 साल के बाद वो अमल हो, ऐसा नहीं। क्या होगा, तुरंत उसको होलीनेस उसका रिटेक्ट कर सकते हैं। सो देयर आर सम प्लानिंग आर इम्प्लीमेंटेड बाय द रूल गवर्नमेंट। मेनली ये जो बीजेपी गवर्नमेंट आया, मोदी गवर्नमेंट आया ना, तब ये ज्यादा से ज्यादा शुरुआत होने लगा, पहले इतना नहीं था। हाँ, बिकॉज गवर्नमेंट इतना स्ट्रिक्ट नहीं था। बाद में जैसे कि देखा कि स्वच्छ भारत मिशन, बाकी ये जो पॉल्यूशन ये लेवल, ये जो सारे है ना, जो मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ही ज्यादा से शुरू होने लगा। सो दिस हम्म 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 हाँ हाँ हम्म। देखो, सब कुछ है इंडिया में, क्या नहीं है? रूल भी है और रूल तोड़ने वाले लोग भी हैं। ठीक है। रूल को तोड़ने कैसे तोड़ते हैं, अभी तो देख रहे हो कितना पॉलिटिक्स चल रहा है, कितना करप्शन चल रहा है। ऊपर से सब रूल है, लेकिन बाद में क्या होता है, ऐसे की तैसे से कर रखे हैं सब। फिर भी मान लो 100% रूल है, तो कम से कम कहीं ना कहीं 20-30% तो रूल तो मान के चल रहे हैं।
100% पोल्यूशन जो हो रहा है उसमें तो कम से कम थोड़ा सा तो कम हो रहा है। ये प्लान है कि इसको और अवेयरनेस बढ़ाया जाए लोगों के ऊपर, क्योंकि लोग जब तक अवेयर नहीं होंगे, अब जितना भी पोल्यूशन मतलब जो भी आपको क्या बोलते हैं, पनिशमेंट करो, कुछ भी लॉ लगाओ, पूरा इफेक्टिव नहीं होगा जब आदमी मन से नहीं सोचेगा कि हम ये ना करूं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन लाइक कंट्री लाइक इंडिया, क्योंकि इतना लोग हैं, इतना चल रहा है, उसमें ये सारे चीज तुरंत इम्प्लीमेंटेशन करना नहीं, मतलब पॉसिबल नहीं है। बट नाउ इट इज गेटिंग बेटर, अभी थोड़ा सा आगे से बेहतर है, 1-2% भी जो भी बोलो। So we are now just study about the action what is the about the river Ganga, and how the holiness of the water of the Ganga can be river in touch, what the rule, and this is called Ganga Action Plan. Now today we are going to study this Ganga Action Plan that is named by the BJP government, that is called Namami Gange. आपने सुना होगा नाम नमामि गंगे। Okay. Is it visible? My screen? Okay. Yes. तो अभी जो स्लाइड मतलब दिख रहा है उसमें क्या लिखा है, नमामि गंगे। नमामि गंगे इज द वन पार्ट ऑफ द गंगा एक्शन प्लान। देखो, गंगा एक्शन प्लान मतलब है गंगा पानी को कैसे शुद्ध बनाया जाएगा, उसके लिए क्या कर सकते हैं, जो भी इम्प्लीमेंट रूल इम्प्लीमेंट करें, पैसे खर्च करें, कुछ भी करें, दैट इज वन द पार्ट। एंड नमामि गंगे गंगे इज द पार्ट ऑफ द गंगा एक्शन प्लान। जो ब्रॉड एरिया है दैट इज गंगा एक्शन प्लान, एंड नमामि गंगे उसका एक छोटा सा पार्ट है। सो लेट्स सी अबाउट द रिवर गंगा। द रिवर गंगा is the river that originate from the Himalaya region and pass through the 5 states of the India. इंडिया का 5 स्टेट होके पास होके जाता है। व्हाट आर दी स्टेट्स? फर्स्ट स्टेट इज हिमाचल प्रदेश, देन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है बिहार, उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल। सीधा से वेस्ट बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में जाके वहां पे खत्म हो जाता है। दिस इज द, and see this blue region is the water, and which can be through flow the water in the river Ganga throughout the year, and the major cities are also resides in the, कितने cities है देखो, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मीरठ, बरेली, अलीगढ़, नागपुर, कानपुर, इलाहाबाद, नागपुर बोलना, ये कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, पाटना, भागलपुर, जो भी है, कोलकाता, सब कुछ तो इधर ही है। बड़े बड़े सिटीज जो है इसका साइड्स में है। तो सर आर मेनी इंडस्ट्रीज आल्सो देयर आर देयर। लेट्स सी गंगा, or which is also named as Bhagirathi, originates from the Gangotri glaciers of the Himalaya. ये जो ग्लेशियर्स से निकलता है उसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर्स। एंड गंगा इनिशियली जब ग्लेशियर से निकलता है तो उसको गंगा का बोला नहीं जाता है, उसको बोलते हैं भागीरथी, बिकॉज भागीरथी इज द स्मॉल ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा। ठीक है, 2-3 रिवर मिलके बड़ा होता है तब ये गंगा कहलाता है। आपने इसका माइथोलॉजी स्टोरी आपको पता है भागीरथी गंगा का रिलेटेड? हाँ, शिव जी का जटा से कैसे उतरे, धरती पे कैसे उतरे। अब तो सीरियल फीरियल देख के तो सबको ये पता है सबको। जो भागीरथी ऋषि थे उनका जो पूर्व पुरुष थे वो, उसको मुक्ति नहीं मिल रहा था, तो वो गंगा को ध्यान किए, फिर आकाश से, स्वर्ग से यहाँ पे बुलाए, तो शिव जी का जटा से देके नीचे आके वहां पे बहने लगे इंडिया में। तो दिस इज माइथोलॉजिकल स्टोरी। गंगा बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द कंट्री। बेसिन मतलब गंगा का साइड, मतलब कहाँ कहाँ से फ्लो हो रहा है, देखो 5 स्टेट से फ्लो हो रहा है। सो दिस इज डेंसली पॉपुलेशन आर सिचुएटेड इन द साइड ऑफ द गंगा। जितना भी मेजर सिटी है सो गंगा के इस किनारे उधर किनारे है। तो 37% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आर रिसाइड्स इन द रिवर बेसिन ऑफ गंगा। साइड, गंगा का साइड में इतना लोग वहां पे बैठते हैं। एंटायर गंगा बेसिन ड्राइज 5 स्टेट तो बोला। नेक्स्ट 47% ऑफ इरिगेटेड एरिया आर इंडिया एंड लोकेटेड इन ए गंगा बेसिन। As we know, Ganga is the perennial river. That means water flow throughout the year. तो समर सीजन में हो गया, बाकी बारिश हो ना हो, वहां पे ज्यादातर लोग क्यों बैठते हैं, क्योंकि उसका पानी से इरिगेशन करके वो लोग क्रॉप यील्डिंग कर सकते हैं। तो दिस इरिगेशन पर्पस मोस्ट ऑफ द विलेजेस एंड सिटीज आर देयर फॉर irrigation of crops.
तो 47 इरिगेटेड एरिया, इंडिया में जितना भी इरिगेशन होता है, जितना भी कैनाल बनाया गया है, डैम बनाया गया है, जो भी है, इसमें क्या डैम बनाना है, तो पानी तो हमेशा आते जा रहा है। तो दिस 40% ऑफ इंडिकेटेड इरिगेटेड एरिया आर द साइट्स इन द गंगा बेसिन। ये इंपोर्टेंट है। व्हाई गंगा इज इंपोर्टेंट? बिकॉज दिस गंगा फाइनली मीट्स बे ऑफ बंगाल एट द गंगा सागर, जहां पे बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे आता है ना, ये जो दिस रीजन is called गंगा सागर, एंड दिस गंगा सागर, हाँ ये वाला रीजन देखो, गंगा डिवाइड हो गया या ये गंगा सागर बोलते हैं। एंड ऑल्सो इसको सुंदर वन भी बोलते हैं, जहां पे पानी वाटर लॉक्ड हो जाता है। एंड टोटल डिस्टेंस ऑफ द रिवर इज 2525 किलोमीटर्स। गंगोत्री ग्लेशियर से बे ऑफ बंगाल तक टोटल डिस्टेंस, दिस इज द 2525 किलोमीटर। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स जर्नी इट्स गेट्स पोल्यूटेड बाय म्युनिसिपल स्वेज। अभी मैंने बताया क्यों पोल्यूशन होता है। मेनली पोल्यूशन होता है जो मेजर सिटीज है, उनका जो सुएज है, गंदी नाले का पानी वो डायरेक्ट छोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड म्युनिसिपल सुएज। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, जो भी इंडस्ट्री है उसका पानी सब वहां पे आता है। एंड अदर पोल्यूटिंग वेस्ट, और भी जितना भी सारे पोल्यूशन है वहां पे मिल जाता है, जैसे कि रिचुअल्स के लिए वो लोग आते हैं और वहां पे फेंक जाते हैं। So these are the different sources of Ganga pollutions. So in order to purify the river water Ganga, that is plan is called Ganga Action Plan. So there are three phases of the Ganga Action Plan. Phase 1, that is Ganga Action Plan Phase 1, ये कब स्टार्ट हुआ? 1985 में ये प्लान लॉन्च हुआ पहले, जब देखा गया कि बहुत सारे गंगा वाटर जो है, होली रिवर है, उसका पोल्यूशन हो रहा है। तो 1985 में ये लोग स्टार्ट किए कि कैसे इसको थोड़ा सा सुधारा जाए। सो इन दिस एक्शन प्लान 1, 433 करोड़ रुपीस वेर स्पेंट। ये जो पैसे उसको खर्च करना किए, तो किस लिए खर्च हुआ? गंगा को क्लीन। तो कैसे क्लीन की, मतलब कैसे खर्च हुआ, कैसे क्लीन किए? वाटर पानी को तो ऐसे ट्रीटमेंट करके तो क्लीन नहीं कर सकते ना। हाँ ये देखो, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वाज सेटअप। जैसे वो जो ये मान लो ये गंगा रिवर फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सिटीज है, यहाँ पे जो सीवेज गंगा में आ रहा है, सीवेज मीन्स तो नाली, गंदी नाली का पानी, तो ये पहले पहले जो है ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाता था। तो ये जो पैसे है उसमें क्या किए, ये जो यहाँ पे एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बैठा दिए हर सिटी के साइड में, जो रिवर से जहाँ पे डिस्चार्ज होता है ना वाटर, तो उसी पे उसको पानी को साफ करके डिस्चार्ज करना है। तो ये गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया, ये पहले पहले प्लांट, मतलब एक्शन प्लान 1 में पहला काम था जो कि बड़े बड़े सिटीज है उसका जो पानी है, सीवेज का पानी, वो डायरेक्ट ना छोड़ा जाए, उसको ट्रीटमेंट करके छोड़ा जाए। सो देर आर सेवरल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर इंस्टॉल इन, ये पैसे खर्च किया हो गया। अगेन रॉ सीवेज वाज कॉट अप एंड डाइवर्टेड। डायरेक्ट जहां पे सीवेज प्लांट बनाया नहीं गया उसमें क्या किया, उसको डायरेक्ट छोड़ा नहीं गया कभी भी, उसको डाइवर्ट कर दिया गया, मतलब दूसरा कहीं इरिगेशन पर्पज, दूसरा कैसे भी होके उसको डायरेक्ट गंगा नदी में नहीं छोड़ देते हैं। दैट इज द गंगा एक्शन प्लान 1। इलेक्ट्रिक एंड वुड क्रिमिशन वाज सेटअप। पहले क्या था, ये 1985 से पहले डायरेक्ट डेड बॉडी को वहीं पे फेंक देते थे नदी में। उसके बाद 85 में रूल बनाया गया कि कोई डेड बॉडी ऐसे नहीं फेंकेगा, उसको पहले जलाया जाएगा, इलेक्ट्रिक या जो भी है घाट बना दिया गया, पहले उसको जलाओ, फिर जाके उसका जो ऐस है उसको फिर फेंकना है। ये काम हुआ गंगा एक्शन प्लान 1 में, ये जो कि 1985 बहुत पुराना की बात है। उसके बाद आता है गंगा एक्शन प्लान 2। 1993 में ये प्लान स्टार्ट हुआ। ये जो प्लान गंगा एक्शन प्लान 1 स्टार्ट हुआ, तब देखा गया क्या हुआ, थोड़ा बहुत कुछ एक्शन में आया, मतलब फिर भी देयर इज नॉट सफिशिएंट टू ट्रीट द वाटर, वाटर का पानी ऐसे गंदा हो रहा है। सो देयर इज इन 1993 again Ganga Action Plan 2 was started, and this Ganga Action Plan 2 includes 1120 करोड़ रुपीस, और पैसे सैंक्शन हुआ उसको साफ करने के लिए। अभी ये पैसे कहाँ लगा? इन द मेन गंगा रिवर एज वेल एज ट्रिब्यूटरीज रिवर्स। जो पानी दूसरे छोटे छोटे नदियां जहां से आ रहे हैं ना गंगा में मिल रहा है, तो गंगा तो साफ हो रहा है, उसके साथ साथ जहां पे पानी आ रहा है छोटे छोटे नदी, उसी में भी ये सारे पैसे खर्च हुआ। जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया, और कुछ कुछ ऐसे। सो दिस
इज नॉट ओनली क्लीन गंगा बट ऑल्सो ट्रिब्यूटरीज, ये इंपॉर्टेंट है। उसका जो छोटे छोटे रिवर ट्रिब्यूटरीज है जहां से पानी आ रहा था उसको भी क्लीन करने लगे। देन नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी वाज सेट अप इन 2009। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कमिटी? नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NRBA? नेशनल गंगा रिवर ऑफ दिस अथॉरिटी, इसका काम क्या हो सकता है? आप बोल बताओ इसका काम क्या है? हाँ हाँ, वो तो है ही। हाँ वो तो भी है, लेकिन ये इसका मेन, यस मेन काम है, ये जो पैसा सैंक्शन हुआ है ना, ये सही दिशा में उसको काम में लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, ये इम्प्लीमेंट करना उसका काम था, ये कमेटी का। ठीक है, जो ट्रीटमेंट प्लांट है, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जो रूल रेगुलेशन है उसका ठीक से चल रहा है कि नहीं, वी कैन जस्ट दे कैन रेगुलेट दिस होल सिस्टम, ये उनका, ये कमेटी का काम था। टू चेक वेदर द प्लान इज गोइंग इन ए करेक्ट वे और नॉट, जो प्लान में चल रहा है वो ठीक रास्ता में जा रहा है या आधे रास्ते में पैसे खत्म हो गया और पेन पेपर में काम हो गया, ये सब देखने का काम था इनका। नेक्स्ट इसका गंगा एक्शन प्लान थर्ड, ये हो गया गंगा एक्शन प्लान टू 1993 में। अगेन जब थर्ड फेज हुआ, देन गंगा एक्शन प्लान थर्ड, दिस थर्ड फेज इज कॉल्ड नमामि गंगे, अभी ये हो गया नाम गंगा एक्शन प्लान थर्ड थ्री, and this Ganga Action Plan 3 is called as Namami Gange. So this Namami Gange is a part of the Ganga Action Plan and which is launched in May 2015। ये मोदी गवर्नमेंट जब था तभी ही लॉन्च हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं नमामि गंगे, जो कि हम लोग सोचते हैं कि क्या है, गंगा को प्रणाम करो, उसका मतलब नमामि मतलब प्रणाम। सो देर आर 2037 करोड़ रुपीज सेक्शन, अभी देखो और ज्यादा पैसा सैंक्शन हो रहा है उसको साफ करने के लिए। व्हाट इज द मेन मोटो? मेन मोटो ऑफ दिस इज निर्मल एंड एविरल गंगा, दिस इज द मेन मोटो ऑफ दिस नमामि गंगे। पहले तो जस्ट उसको पॉल्यूशन स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाते थे और क्या करते थे, उसको क्रिमिशन के लिए वो रूल बना दिया, वही काम था बस। अभी लेकिन ये वाला जो नमामि गंगे, दिस इज द एक्सटेंडेड वर्जन, इसका थोड़ा सा अलग से हाईलाइट हो गया, क्योंकि बिकॉज यू कैन डायरेक्टली क्लीन द वाटर गंगा। पहले क्या हुआ, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन गया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना, उसके बाद ट्रीटमेंट होके पानी गंगा में आया, दैट इज वन थिंग, दैट इज गुड। बट ऑल्दो द वाटर गंगा इज पॉल्यूटेड बाय अदर थिंग्स, in this phase third Namami Gange, the main motto is to clear and a viral Ganga, a point in this point is important। Nirmal means साफ pure, a viral Ganga means as Ganga is as it before pollution, pollution जो हुआ है उसका पहले जो हाल में था ऐसे हाल में हमको लाना है, दिस इज द मेन मोटो। नमामि गंगे लॉन्च इन 4 फेजेस, तो ये जो इसका भी 4 फेज में लॉन्च हुआ है, मतलब क्या क्या है डिटेल्स आगे देखेंगे। यूनाइटेड कैबिनेट और अप्रूव एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लीन गंगा फंड फॉर नमामि गंगे प्रोग्राम। सो दिस इज क्लीन गंगा फंड मींस, और ये जो 2037 करोड़ सैंक्शन बाय गवर्नमेंट, actually this is not sufficient, so the government has also established a fund that is called clean ganga fund, we can donate in the name of ganga। लोग भी पैसे देने लगे, अभी जैसे कि कोरोना के टाइम पे आ रहा था ना, प्राइम मिनिस्टर फंड, चीफ मिनिस्टर फंड, लोग पैसे दे रहे थे, ये इतना करोड़ दिया, वो शाहरुख खान इतना पैसा दिया, आ रहा था ना। तो दिस फंड, this clean ganga fund also people are contributing, as well as different industries contributing, politicians सब लोग contribute करने लगे और उसका awareness फैलाने गया। So more amount of money that can be gathered for cleaning Ganga is a part of the Namami Ganga program and it is run in by 4 phases। देखते हैं क्या क्या 4 phases है। Phase 1, phase 1 is a entry level activity। What are the different activity? Entry level means river surface cleaning, रिवर सरफेस क्लीनिंग, पहले पानी के ऊपर में जो जो गंदा है
उसको साफ करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट पॉल्यूशन और पॉल्यूट्स इन वाटर रिवर? क्या क्या होता है बताओ? व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन सरफेस रिवर वाटर? हाँ, छोड़ दिया। फिर देखो कि ये सारी चीजें, सारे जो प्लास्टिक रहती है, फिर उसमें क्या रहता है, जो रिवर का साइड साइड में सारे जो प्लांट ग्रो कर जाते हैं ना, वो गंदा कर लेते हैं पूरा एक जगह पे। सो दिस ऑल आर और प्लास्टिक्स और मटेरियल्स दैट आर पॉल्यूटेड इन द सरफेस, ऊपर सरफेस ऊपर में जो है सारा उसको क्लीन करने के लिए ये हो गया रिवर सरफेस क्लीनिंग फेज वन। द वेस्ट डिपोजिटेड इन द रिवर डायरेक्टली, जो ऊपर में जो है उसको करेंगे। दैट इज सॉलिड वेट रीचिंग थ्रू ड्रेन्स, जो ड्रेन से, ड्रेन को तो साफ किया, जो भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो भी बसा है, लेकिन ड्रेन के ऊपर में जो हम लोग कचरा फेंक देते हैं वो ड्रेन के साथ बहा के आ जाता है और वो नदी में मिल जाता है। सो दिस सॉलिड वेस्ट आर ऑल्सो सेग्रीगेटिंग बिफोर एंटरिंग द वाटर। पायरस रिफ्यूज, पायरस रिफ्यूज मीन्स डायरेक्ट कोई डेड बॉडी कोई भी मतलब यहाँ पे ना फेंके, तो देर आर स्ट्रिक्ट रूल। पहले क्या था, रूल बना दिया, लेकिन अभी क्या करते हैं, वहीं पे पुलिस को तैनात कर दिया गया कि भाई देखो कोई भी ऐसे आदमी काम कर रहा है तो डायरेक्ट उसको फाइन लगा दो। पहले तो कोई देखने वाला नहीं था, तो अभी उसको पूरा बैन कर दिएंगे। नेक्स्ट, सॉलिड वेस्ट डिस्पोज ऑन द घाट। अभी जो घाट में जो रिचुअल्स होता है, जैसे कि आप किसी का मृत व्यक्ति का क्या बोलते हैं, पिंडदान करने के लिए जाते हैं ना गंगा में, तो उसके साथ क्या करते हैं, दे कैन लिटर द सॉलिड बैंक ऑफ द रिवर, फूल पत्ते जो भी है ये वगैरह कितना बहुत सारे लेके जाते हैं, प्लास्टिक थैली वो लेके जाते हैं और वहीं पे छोड़ देते हैं उनका पूजा होने के बाद। सो दिस आर नॉट लेटिंग लीटर, तो वहां पे क्या करने, डस्टबिन इंस्टॉल कर दिए, जगह जगह पे अवेयरनेस ऐसे लिख लिया, पुलिस लोग थे, लोगों को समझाया, इस टाइप का बहुत सारे एक्टिविटीज करने लगे जो कि वाटर सरफेस में जो गंदा फैल रहा है उसको रोक सकें। दीज आर द रिवर सरफेस क्लीनिंग प्लान। एंड दिस रिवर सरफेस क्लीनिंग में और भी है, दैट इज टॉप प्रायोरिटी क्रिएटिंग मोस्ट विजिबल इम्पैक्ट। इसका मेन रीजन था, मतलब बाहर से भी अच्छा दिखेगा, वो बाहर गंदा ना दिखे। वन ऑफ द एक्टिविटी इज ट्राश स्क्रीमर, जो ऑलरेडी पानी में है उसको कैसे साफ करेंगे। पानी के ऊपर मान लो कोई प्लास्टिक चल रहा है कोई भी है, तो उसको कैसे करें, बाय द स्कीमर। ट्राश स्कीमर, स्कीमर मीन्स कोई नेट पेट लगा दिया, या कोई एक मशीन आता है, ट्राश मीन ट्राशबिन जो होता है, दैट इज कचरा, कचरे साफ करने वाला मशीन इस्तेमाल करने लगे। रिवर सरफेस क्लीनिंग स्टार्टेड बनारसी, कानपुर, इलाहाबाद, मथुरा, जो जो जहां जहां पे रिचुअल हो रहा था, मतलब होली सिटी जहां पे बड़े बड़े सिटी था वहीं पे स्टार्ट हुआ। सी दिस इज द ट्राश स्क्रीनिंग मशीन, ऐसे आपने देखा होगा, दिस टाइप ऑफ मशीन आर इंस्टॉल। ये सारे जो है वाटर सरफेस को, सॉलिड प्लास्टिक जो भी कचरा गया है उसको क्या करता है, सारा साफ करता है यहाँ पे ये मशीन। दिस इज कॉल्ड ट्राश स्क्रीमर। ये भी देखो, यहाँ पे सारे फूल पौधे से रिवर में फेंक देते हैं, ये सारे यहाँ पे बोट रहता है ना उसमें रिचुअल्स करते हैं, फिर सारे यहाँ पे नदी में विसर्जन कर देते हैं, तो ये मशीन में ये सारे यहाँ पे आ जाता है ऊपर। एंड दिस कैन बी क्लीन बाय दिस ट्राश स्क्रीमर। तो सेवरल ट्राश स्क्रीमर दिस टाइप ऑफ मशीन आर इंस्टॉल टू क्लीन द सरफेस रिवर। अभी देखो इसका पीछे जो वाटर है सरफेस दिख रहा है ना, अच्छा पानी दिख रहा है, सारा एक साथ हो गया। तो दिस मशीन आर इंस्टॉल इन द फर्स्ट पेज ऑफ द नमामि गंगे प्रोग्राम। सेकेंड फेज में क्या है, रिचुअल सैनिटेशन। सेकेंड, फर्स्ट फेज में तो जो सॉलिड मटेरियल था उसको क्लीन करने के लिए मशीन लगा दिया, सेकेंड फेज में इज द रिचुअल सैनिटेशन। रिचुअल, व्हाट इज रिचुअल, हम लोग जो जाते हैं अस्थि विसर्जन करने के लिए, जो पिंड दान करते हैं, दैट इज द रिचुअल। बट व्हाट हैपेंस इन रिवर गंगा, all throughout the country people are coming throughout the year टू मेक देयर रिचुअल्स। इतना लोग रिवर में आते हैं डुबकी लगाने के लिए, अपना पाप धोने के लिए और उनका जो भी रिचुअल्स करने के लिए, तो वो लोग जाएंगे कहाँ, दे आर ऑल्सो रिसाइडिंग इन द बैंक ऑफ रिवर साइड में। एंड
दे ऑल्सो लीटर्स, उनका जो भी है सैनिटेशन, सैनिटेशन में टॉयलेट करते हैं, जो लेट्रिन करते हैं, कहाँ करते हैं? सुबह सुबह लोटा लेकर निकल गए नदी के किनारे, बालों में कर लिया। तो दिस इज कॉल्ड सैनिटेशन क्लीनिंग, दैट मीन्स फॉर दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट 263 करोड़ रुपीस एक्सपेंस फॉर द ड्रिंकिंग वाटर पर्पज एंड सैनिटेशन। पानी सप्लाई और लेटरिन बनाने के लिए इतना रुपीस, करोड़ रुपीस खर्च कर दिया गया। कौन कौन सा, कहाँ कहाँ पे? जो मेजर सिटीज है ये, फॉर द सैनिटेशन, जो टॉयलेट क्लीनिंग एंड वाटर सप्लाई के लिए, जाके सुबह सुबह वहां पे गंदा ना करें। नेक्स्ट इज कॉल्ड सिचुअल मॉडल डेवलपमेंट ऑफ झारखंड मॉडल स्टेट। दिस इज कॉल्ड सिचुअल मॉडल। सिचुअल मॉडल मीन्स क्या होता है ना, जैसे कि वी आर यूजिंग वाटर इन आवर होम। हम लोग पानी कहाँ कहाँ यूज करते हैं हमारे घर में, बताओ आप? एक तो नहाने के लिए यूज करते हैं, दूसरा बर्तन धोने के लिए यूज करते हैं, तीसरा टॉयलेट में यूज करते हैं। यस। तो ये जो पानी है, इसमें जो यूज करने के बाद जो पानी है, वो पानी हम क्या करेंगे? उसको डायरेक्ट जमीन में छोड़ते हैं, या टाउन में, सिटी में क्या करते हैं, सीवेज में चले जाता है, वो नाली में चले जाता है डायरेक्ट। यस। तो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर दे कैन बी पॉल्यूटेड एंड ओवरफ्लो थ्रू सीवेज, बेकार में सीवेज में चला गया। तो इन सिचुअल मेथड व्हाट कैन वी डू? वी जस्ट रीयूज द वाटर फॉर गार्डनिंग पर्पज। हम लोग साइड में जो बगीचा होता है ना, वो पानी को डायरेक्ट उधर ना छोड़ के, जो नहाने पानी, जो बासन धोने का पानी, उसको हम क्या करेंगे, वहां पे यूज कर लेंगे गार्डनिंग पर्पज, या इसको कोई भी तरीका का रीयूज कर लेंगे। दिस इज कल, हाँ, दिस इज कल सिचुअल मेथड। इन झारखंड स्टेट में ऐसे भी कुछ यूज करने के लिए भी कुछ प्रोग्राम बनाया गया, जो कि डायरेक्ट वो सैनिटेशन वाला पानी ना छोड़ा जाए उस रिवर में। बट दिस इज एक्सपेंडिचर ज्यादा है उसका, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एडॉप्टेड एवरीवेयर। छोटा सा गांव कहीं पे, एक दो जगह पे ऐसे, मतलब एज ए मॉडल इट कैन बी ऑपरेटेड। नेक्स्ट इज कल गंगा ग्राम। गंगा ग्राम्स, ग्राम मीन्स क्या? ग्राम मीन्स गांव, गांव, विलेज। गंगा ग्राम में गंगा का किनारे जो छोटे छोटे गांव बैठे हैं, वो जो बड़े बड़े तो सिटीज है, ठीक है, उसमें सैनिटेशन बना लिया हमने, लेटरिन बना लिया, वो भी बना लिया, और पुलिस तैनात कर लिए, ना गंदगी फैलाएं। लेकिन जो गांव है, गांव में क्या करेंगे लोग? तो सुबह जो भी बोलो आप, सुबह लोटा निकलेंगे वो गांव में। सो फॉर दिस कंट्रोल दिस एक्टिविटीज, the complete area where small villages are resides in Ganga basins, these are adopted by the government. Government छोटा छोटा गांव को adopt कर लिया। Adopt means they can be responsible for this. They can make toilet, water facilities in each houses of these villages, ना कि जो बाहर घर खेतों में जाए। फ्री टॉयलेट्स बनाने लगा घर में, जैसे कि मोदी गवर्नमेंट बना रहा था ना गांव में, सुने होंगे टॉयलेट्स प्रोग्राम। एक तो पिक्चर भी बना लेता, अक्षय कुमार वाला टॉयलेट पिक्चर्स आ गया था, प्रेम कथा। सो दीज आर द प्लान हाउ दिस सैनिटेशन कैन बी कंट्रोल्ड। बाहर में गंदगी ना फैलाएं, उसको कंट्रोल किया जाए। जो गांव है गंगा रिवर का साइड साइड में, सबका घर में टॉयलेट हो, पानी का सुविधा हो, ये सारी चीज गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबल था। सो देर आर कितना विलेजेस है? देर आर 200 विलेजेस आर आइडेंटिफाइड, जो कि छोटे छोटे गांव हैं, उनको भी फ्री टॉयलेट दिया गवर्नमेंट ने। तो इतने सारे पैसा उसको खर्च किया फॉर द सैनिटेशन पर्पज, जो बाहर में ना टॉयलेट करें, बस उतने के उसके लिए। दिस इज द सेकेंड फेज, दैट इज रिचुअल सैनिटेशन। ओके। नेक्स्ट इज आ गया थर्ड फेज, इज कल क्रीमिटोरिया एंड घाट डेवलपमेंट। अभी ये आ गया हमारा जो अस्थि विसर्जन वाला पार्ट। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम, क्या उसमें रीडेवलपमेंट किया? रिनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रीमिटोरिया। पहले जो क्रीमिटोरिया जहाँ पे लोगों को जलाया जाता था या ये करने जाता था, वहां पे इलेक्ट्रिक वाला इंस्टॉल किया। उसके बाद उसको प्रॉपर डेवलपमेंट किया, उसको पहले से खुले में करते थे, उसके बाद उसको एक जगह पे साफ सुथरा किया। सो देर आर सम लॉस्ट ऑफ रुपीज आर एक्सपेंड फॉर दिस डेवलपमेंट ऑफ दिस और मॉडर्नाइजेशन, दैट मीन्स इलेक्ट्रिफिकेशन। ज्यादा पहले लकड़ी से जलाया जाता था, अभी इलेक्ट्रिफाई से जो डेड बॉडी है उसको जलाया जाता है। दैट कैन बी इंस्टॉल एंड इनिशियल कंपटीशन ऑफ 20-25 अर्बन लोकल बॉडीज। दैट मीन्स ये अर्बन मीन्स जितना भी टाउन है, उसमें टाउन्स में एक एक, जैसे कि इतना घाट्स बनाया दिया गया, उसका रेस्पॉन्सिबल क्या हो रहा है, एक
एक कमिटी को दिया गया। जैसे कि मान लो एक जगह पे एक कहीं पे ऐसे रिचुअल्स करने के लिए है, कि मेडिटेशन है, उसका देखभाल करने के लिए एक कमिटी वहां पे है। सो ही इज ऑल रेस्पॉन्सिबल, दैट इज कॉल्ड लोकल बॉडी। दे लोकल पीपल, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग देयर ओन एरियाज। ना कि कहीं दिल्ली से एक ऑफिसर आया गंगा को क्लीन किया, वो ऐसा नहीं है। वहां का खुद का लोगों को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि आप देखो ये एरिया आपका है, आप उसको जानो, ठीक है, उसको अथॉरिटी दिया गया, उसको कुछ पैसे मिला, तो ही क्या करेगा, वो अच्छे से उसको देखभाल करेगा। नेक्स्ट इज टारगेट ओवर 100 बाय नवंबर 2016। ये 2016 का पुराना बात है, एंड इट इज ऑलरेडी इंस्टॉल। पहले वो क्रीमिटेरिया नहीं था जो जहाँ पे डेड बॉडी जलाया जाता है, अभी वो नया नया घाट क्रीमिटेरिया विल बी डेवलप्ड। वर्क एंड रिपेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग घाट। जो एग्जिस्टिंग घाट है, पहले क्या था गंगा घाट में ऐसे अभी देखो वहां पे कंक्रीट कर दिया गया, जैसे कि गंगा घाट में उतरने के टाइम पे होता है ना कंक्रीट घाट पूरा, जो कि साफ सुथरा डेली साफ होता है, ये होता है। पहले ऐसे ही था, तो वहां पे कोई भी आके गंदगी करके चला जाता था। सो ऑल दीज आर द third development, crematorium and ghat development is the third phases of Namami Ganga. Then what is the fourth phases? That is medium level phases. That is called medium level municipal sewage management. Next part is again subdivided. That is municipal sewage management. इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल एसटीपी सुएज ट्रीटमेंट प्लांट। पहले गंगा एक्शन प्लान 1 में बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल किया था 1985 में, याद आ रहा है ना, पहले स्लाइड में जो हम लोग देखा था, कौन सा, हाँ, गंगा एक्शन प्लान में 1 में वो था 9, ये तो 2 है, 1 में था ये 1985 में 433 करोड़ उस स्विच ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए यूज किया था। लेकिन अभी कौन सा टाइम हो गया, 2015 हो गया। So these sewage treatment plant that are not running properly, 100 से उसका एफिशिएंसी घट के 10-15% रह गया है, बाकी ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं पानी। नाम तो है वो स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट तो है, बट दैट आर नॉट एफिशिएंटली रनिंग। सो अगेन मनी आर सैंक्शन फॉर द ऑपरेशन एंड फुल फेज ऑफ द ट्रीटमेंट प्लांट। जैसे कि 30% एक्टिविटी आर नॉट ऑपरेशनल, वो तो खराब हो गया है। 60% आर जो भी रन हो रहा है उसका 100% कैपेसिटी से ज्यादा पानी उसमें आ रहा है, उसका कैपेसिटी से ओवर हो गया, तो वो भी ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है। सो दिस मनी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी इज सैंक्शन फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ दिस स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट, और उसका कैपेसिटी बढ़ा दिया गया, उसको नया डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट करने के लिए पैसे भी खर्च करने लगे। ट्रीटेड वाटर नॉट ऑफ स्टैंडर्ड, बिकॉज तो पहले जो था टेक्नोलॉजी 1985 वाला, उसमें सही सही उसको क्लीन भी नहीं हो रहा था। So we are redeveloping or for the treatment of this sewage. Additional 4,000 million liters per day will be created. That means as the population increases, the waste water also increases, sewage water also increases. So additional volume of water also treated. So there will be more amount will be spent to treat the additional sewage. This is municipal sewage management, that is second level. Again effluent management, अभी सेम इंडस्ट्री के केस में ऑल्सो, जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट था वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा होगा, उसको भी ठीक से काम करने लेंगे, कैसे करेंगे, रियल टाइम इफ्लुएंट मॉनिटरिंग स्टेशन आर इंस्टॉल। पहले क्या था, बाहर से लोग आते थे और वहां पे देखते थे कि ठीक से उसका जो स्टैंडर्ड्स है उस स्टैंडर्ड्स में जा, तो मतलब छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है। अभी क्या करेंगे, नहीं, वहां पे एक आदमी रहेगा घर, मतलब उसको वहां पे उसको अपॉइंटमेंट दिया गया कि ठीक है, तो हर घंटे हर दिन मुझे रिपोर्ट दे, अभी इसका जो जो छोड़ रहा है वो ट्रीटमेंट वाटर आफ्टर ट्रीटमेंट, एक्चुअली दिस आर वायलेटिंग द लॉज और नहीं, पूरा रियल टाइम में उसको हर दिन उसका रिपोर्ट भेज रहे हैं। सो द इंडस्ट्री दे कैन नॉट बी स्किप। वो तो अभी झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि वहां पे बैठा हुआ है कोई, पहले कोई नहीं था, तो रात के टाइम छोड़ देते थे, दिन में कभी भी ऐसे मन चाहे काम करते थे। सो दीज आर द डिफरेंट मेजर्स और मैनेजमेंट डिसीजन टेकन बाय दिस नमामि गंगे, ये प्लान में ये आया। देन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री लाइक डिस्लरी, पल्प, पेपर, टेक्सटाइल, शुगर, ये सारे इंडस्ट्री है, उसका जो भी है सारे जगह पे ऐसे एफ्लुएंट मैनेजमेंट एफ्लुएंट मॉनिटरिंग सिस्टम सारे इंस्टॉल किए। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, दैट मीन्स
नो इंडस्ट्री कैन रन विदाउट ट्रीटमेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर। मान लो कोई वेस्ट वाटर ऐसे विदाउट ट्रीटमेंट छोड़ दिया तो नेक्स्ट डे उसको एक क्या हो जाएगा, चिट्ठी आ जाएगा, भाई तेरा इंडस्ट्री सील हो गया। दिस स्ट्रिक्ट rule can be added in this Ganga action plan. Then close monitoring by vigilance squad by the Central Pollution Control Board. सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो पहले भी था, लेकिन पहले पैसे लेके करप्शन करके क्या होता था, बस साइन कर देते हैं, हाँ ठीक है चल रहा है, ठीक स्टैंडर्ड में जा रहा है, लेकिन इधर कुछ नहीं है। नाउ इट इज द विजिलेंस स्क्वाड आर आल्सो कीप आए टू द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कोई भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑफिसर भी ना अच्छे करप्शन पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि विजिलेंस स्क्वाड भी उसको देखने के लिए है। सो 100% नॉट एफिशिएंट, बट आल्सो देयर इज ए सम इंक्रीज ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द इफ्लुएंट ट्रीटमेंट। जो भी प्रोसेस है उसको थोड़ा सा आगे इंक्रीजमेंट हुआ कि नहीं हुआ ये करने के बाद, एंड दिस आर द comes under this गंगा एक्शन प्लान, एंड दिस इज मोदी गवर्नमेंट का सारा आइडिया है ये। So after this, nowadays the Ganga river is seems to be clean। अभी भी दिख रहा है कि इतना पैसे खर्च हुआ, ये सारी चीजें हुआ, तो थोड़ा सा अभी इन पॉल्यूशन उसका रिवर का होलीनेस और ट्रूथनेस भी ठीक से आ रहा है अभी। नेक्स्ट पेज कल अदर एक्टिविटीज में और क्या क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, मैंने बोला था और वो सार भी बोल रहे थे, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, दैट मीन्स yes, different animals and plants that are present in this location। एक जगह पे, जैसे कि नदी में कौन कौन सा जीव जंतु मिलेगा आपको। हाँ, यस, जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो वहां पे रहेंगे। तभी क्या होगा, मान लो क्रोकोडाइल्स और फिश और फ्रॉग सारे वहीं पे हैं, स्नैक्स हैं, तो कोई वहां पे गंदे करने के लिए नहीं जाएगा, अंदर पानी में नहीं घुसेगा। या उनका जो एक्टिविटीज है देट कैन बी इंटैक्ट, पानी अच्छा मतलब इज इज प्योर वाटर, नॉट पोल्यूटेड वाटर, देन दिस वाइल्ड लाइफ also survive, organism also survive in that water। So this is another activity। CIFRI assisted the project about fish conservation। ये fish conservation क्या है, जो कि in the river there are different type of fish are there, like small fish, छोटे, उसके बाद और बड़ा कोई मिट्टी में रहने वाला फिश, तो there are different variety of fish population are there also। So this conservation of this population, these are also one part of this biodiversity conservation, which is regulated by Central Indian Fish Research Institute। This is regulated by this fish conservation, that is diversity for conservation of biodiversity in the river। जैसे कि ये डॉल्फिन, यहाँ पे डॉल्फिन, क्रोकोडाइल और अदर जो भी है उनको भी इंटैक्ट रखते हैं। सो एक्चुअली डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स देखा है कभी आप। अच्छा, तो डॉल्फिन कहाँ मिलता है, ये रिवर में मिलता है या सी में मिलता है, समुद्र। तो यहाँ पे बोला है कि रिवर में, गंगा में डॉल्फिन छोड़ेंगे, उसका मतलब क्या गंगा में मिलता है डॉल्फिन। एक्चुअली डॉल्फिन आर, देयर आर टू टाइप ऑफ डॉल्फिन। एक होता है जो मेराइन डॉल्फिन, जो सी में मिलता है, जो कि ज्यादातर मिलते हैं, बट इन इंडिया देयर आर सम फ्रेश वाटर डॉल्फिन आर देयर। नदी में भी कुछ कुछ डॉल्फिन मिलते हैं इंडिया में। एग्जाम्पल, देयर आर थ्री प्लेसेस वेयर इंडिया फ्रेश वाटर डॉल्फिन आर देयर। वन इज इन गंगा रिवर, सेकेंड इज इन ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि आसाम में है, थर्ड इज इन ओडिशा, चिलिका, नाम सुना है ना, चिलिका लेक। यस, ये तीन जगह पे डॉल्फिन मिलते हैं, एंड दिस थ्री प्लेसेस डॉल्फिन लिव्स इन फ्रेश वाटर। ये आपका फ्रेश वाटर में भी डॉल्फिन पाया जाता है। एक्चुअली डॉल्फिन का समुद्र वाला पानी में ज्यादा मिलते हैं, बिकॉज देयर डेप्थ ऑफ द वाटर लेवल इज हाई एंड द वाटर इज प्रेजेंट थ्रू आउट द टाइम, सूखता नहीं कभी। तो गंगा रिवर में मिलने का मेन रीजन क्या है, यहाँ पे भी पानी कभी नहीं सूखता और उसका डेप्थ ज्यादा है। ब्रह्मपुत्र रिवर ऑल्सो, दे नेवर डायड, बिकॉज ब्रह्मपुत्र रिवर the water also comes from the तिब्बत, हिमालय ऊपर पार्ट से आता है, चीन से तिब्बत से पानी आता है वहीं पे भी, तो दिस also never dies। एंड चिलिका जो लेक है दैट इज लिंक टू सी लेवल, सी के साथ कनेक्टेड है वन साइड में, सो इट ऑल्सो नेवर डाइज, मीन्स गहराई चाहिए और पानी चाहिए उन लोगों को डॉल्फिन के लिए रहने के लिए।
सो इन दिस थ्री रीजन्स, मतलब गंगा में डॉल्फिन रह रहा है, उसका मतलब क्या, पानी साफ है और पानी बहुत ज्यादा है, उसमें नहीं सूख रहा है, अच्छा है। सो दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स। Another thing is called afforestation. This is also one action plan of the Namami Gange. ये भी आता है नमामि गंगे एक्शन प्लान में। फॉरेस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट? पेड़, है कि नहीं? फॉरेस्ट में क्या रहता है? ज्यादातर पेड़ रहता है, ट्रीज रहते हैं। तो हम लोग, दो देर आर टू टर्म, वन इज कॉल्ड डीफॉरेस्टेशन, वन इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। डीफॉरेस्टेशन मीन फॉरेस्ट को काट देना, पेड़ को काटना है। एफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ लगाना, नया नया पेड़ लगाए, जहाँ पे पेड़ नहीं है वहां पे पेड़ लगाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड द एफॉरेस्टेशन। सम मनी, सम पार्ट ऑफ द मनी आल्सो स्पेंड फॉर द एफॉरेस्टेशन, दैट मीन प्लांटिंग न्यू ट्रीज इन द रिवर बैंक्स। जो साइड साइड में हम लोग कल ही डिस्कस किए थे, जो रिवर साइड में, जो कौन सा कावेरी रिवर साइड में गवर्नमेंट में पैसे खर्च करके प्लांट लगा रहे हैं, बिकॉज टू प्रिवेंट फ्रॉम द ड्राई होने से बचाने के लिए पेड़ लगाना चाहिए साइड साइड में। तो हियर गंगा रिवर के ऑल्सो साइड साइड में ये लोग पेड़ लगा रहे हैं। प्रोजेक्ट एफॉरेस्टेशन कैन बी डन बाय एफआरआई, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये है एफआरआई, इसका काम था, ये बहुत पैसे खर्च करके साइड साइड में प्लांटेशन किया गंगा रिवर का। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रिवर ए नमामि गंगे। 2016 में अबाउट 4000 हेक्टेयर प्लांटेड, इससे टारगेट था। अभी 2022 हो गया, ये पुराना डाटा है। नाउ ऑल्सो प्लांटिंग डन, प्लांटिंग इज गोइंग ऑन। वहां पे भी प्लांटिंग हो रहा था, अभी भी हो रहा है, लेकिन जो एक्चुअल डाटा है दैट में भी डिफर। वर्क हैज बीन कमिटेड टू, जो ये तो पुराना डाटा है, ओवरऑल 30,000 हेक्टेयर्स आई टारगेट फॉर प्लांटिंग। पूरा जितना रिवर्स है 5 स्टेट्स में ना, सारा एरिया में उसका साइड साइड में प्लांट करने के लिए प्लानिंग था इसका, नमामि गंगे का। जब 2015 में स्टार्ट हुआ था, तभी का बात है ये। अभी तो इतना हो गया। तो नेक्स्ट स्टेज इज आफ्टर स्पेंडिंग सो मच मनी इन रिवर फॉर क्लीनिंग दिस रिवर, for this installing STP, WTP, all these things. Now it is time to spend some money for water quality monitoring. हमने इतना पैसा खर्च किया, इतना सब किए, फिर भी वो वाटर क्वालिटी पहले से बेटर है कि नहीं है गंगा रिवर का, कैसे पता चलेगा? वी हैव टू जस्ट मॉनिटर वाटर क्वालिटी। ये आपका वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एक यूनिट आपका शायद सेकंड सेम में हाँ सेकंड सेम में आएगा। हाउ टू चेक द क्वालिटी ऑफ वाटर, क्या क्या पैरामीटर है जो कि वाटर क्वालिटी को मेजर करते हैं। हाँ, इट इज बेटर फॉर ड्रिंकिंग। देर आर 3 टाइप ऑफ वाटर क्वालिटी। एक तो वाटर क्वालिटी जो है पूरा पोल्यूटेड है, हम उसको कुछ नहीं कर सकते, ना पी सकते हैं, ना उसको नहा सकते हैं, कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और एक वाटर क्वालिटी है जिसको पी नहीं सकते बट हम नहा धो सकते हैं, वो मतलब दूसरे गार्डनिंग पर्पज में यूज कर सकते हैं। और एक क्वालिटी है जो कि ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, विच कैन यूज एवरीवेयर, हम लोग पी भी सकते हैं, जमीन में उसको इरिगेशन भी कर सकते हैं। सो देर आर डिफरेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स वी हैव टू चेक। सो इन द रिवर गंगा देर आर 57 मैनुअल मॉनिटरिंग स्टेशन आर इंक्लूडेड। ये रिवर गंगा ऐसे ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका वाटर क्वालिटी चेक करने के लिए क्या हुआ, देर आर डिफरेंट मॉनिटरिंग स्टेशन आर इंक्लूडेड इंस्टॉल्ड। हर जगह पे वाटर सैंपल ले लिया, उसको टेस्ट करने के लिए हर दिन रिपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ इसका वाटर क्वालिटी यह है। तो आज टेस्ट किया, कल टेस्ट किया, एक साल के बाद टेस्ट करेंगे। सो वी हैव द डाटा एंड सी इज द वाटर क्वालिटी इंक्रीजिंग। इतना जो पैसे खर्च कर रहे हैं उसको साफ करने के लिए, इट इज वर्क और नॉट। कैसे चेक करेंगे? हम तो ऐसे ही चेक करेंगे। सो देर आर 133 न्यू रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशन आर आल्सो डिस्प्लेड। दैट मीन्स 57 तो ऑपरेटेड था जब 2015-16 में, और भी बहुत सारे वाटर क्वालिटी चेकिंग स्टेशन आर इंस्टॉल where they can instantly check the water at that time। एक तो होता है पानी का सैंपल उठा लो और लैब में भेज दो चेक करने के लिए, ये होता है। दूसरा क्या होता है, लैब का जो मशीन है वही तुरंत उसी जगह पे ले आओ, तुरंत उसका रियल टाइम डाटा मिल जाएगा। दैट इज रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशन। पानी को उठा के लैब को ले जाओ, वहां दूसरा लोग चेक करेगा, रिपोर्ट तीसरा लोग पढ़ेगा। इसमें इट मे बी सम एरर, इन में भी सम करप्शन, कुछ भी हो सकता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, रियल टाइम डाटा हमको चाहिए। तो वी आर जस्ट इंस्टॉल सम स्टेशन एंड सम मशीन्स एट दैट पॉइंट। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट उसी से हम ले लेंगे, ना कि तीसरा लोग पढ़ेगा चौथा लोग रिपोर्ट भेजेगा।
है कि नहीं, दीज आर का रियल मॉनिटरिंग स्टेशन। ये सारे चीज में पैसे खर्च हुआ। इस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द नमामि गंगे। देखा कितना मतलब इफेक्टिवनेस आ रहा है धीरे धीरे नमामि गंगे में। देन ये तो छोड़ो, टेंडर इशू हुआ है, अभी तो बन भी गया होगा, 2022 हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। ओके, देन कम्युनिकेशन एंड पब्लिक आउटरीच, दिस इज ऑल्सो नॉट लीस्ट बट द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। क्यों? सारा पैसे खर्च किए, इतना सारा हुआ, लेकिन लोगों का अवेयरनेस आपको ना फैलाया लोगों में, तो उसका फायदा क्या है? आप जो भी पैसे खर्च हो रहा है, जो भी हो रहा है, दैट इज फॉर द पीपुल। इफ पीपुल आर polluted and we are just cleaning the pollution, that is no reason। if the pollution is checked at the initial stage, जो pollution कर रहा है उसको बंद कर लो जाके, तो हमको ये जो क्लीन करने का, ये सारी चीजें करने का झमेला ही नहीं है ना। सो देयर इज massive massive viral of this Namami Gange program was started। तो मोदी गवर्नमेंट में क्या बोला कि चलो ये नमामि गंगे जो प्लान है, इसको इंडिया का हर एक आदमी को पहुंचा दिया जाए। व्हाट इज द नमामि गंगे प्रोग्राम इज। सो ये वायरल हो गया। दैट्स व्हाई नमामि गंगे वर्ड इज नोन बाय एवरी इंडियन। किसी को भी पूछो उसको पता होगा नमामि गंगे क्या है। दिस इज द मेन रीजन हाउ दिस नमामि गंगे प्लान इज वायरल इन इंडिया। कैसे वायरल हुआ बता सकते हो? यू कैन टेल वन और टू थिंग्स। अरे मोदी गवर्नमेंट का एडवर्टाइज नहीं देखा क्या? वो वायरल। हाँ वही तो मतलब मेन है एडवर्टाइजमेंट। आप टीवी हर कोई देख रहा है, तो ये जो भी मतलब टीवी के बारे हो माध्यम में हो गया, उसके बाद न्यूज़पेपर में हो गया, व्हाट्सएप में हो गया, ये सारे चीज जो टेक्नोलॉजी यूज करके ना, ये सारे आइडियाज व्हाट इज नमामि गंगे, हाउ रिवर गंगा इज क्लीन, लोगों को ऐसे जागरूक फैला दिया गया कि हाँ इसको क्लीन कर रहे हैं, क्लीन है, अच्छा है, ये है सारी चीजें, तो लोग ऑब्वियसली वहां पे जाके गंदगी नहीं करेंगे ना। दैट इज, हाँ दैट इज जन संवाद, लोक प्रचार हो गया पूरा ये प्लान नमामि गंगे। उसके लिए भी पैसे लगते हैं प्रचार करने के लिए, मीडिया को पैसे दो, वो न्यूज पेपर वाले को दो, उसको दो, तो इसमें भी कुछ पैसे खर्चा हुआ। एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द नमामि गंगे, ये वायरल करने वाला ही चीज ही उसका एक पार्ट था। एंड दिस कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी नमामि गंगे अप्रूव्ड बाय एंड बीन इम्प्लीमेंटेड। सारे फेसबुक में वायरल, व्हाट्सएप में वायरल, सारे टीवी चैनल बोलते हैं कि अरे गोदी मीडिया है, मोदी का प्रचार कर रहा है। ऑब्वियसली पैसे तो खर्च कर रहा है ना। तो बस तो ये पैसे खर्च करना, लोगों के पास ये संवाद पहुंचाना, ये दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द नमामि गंगे। ठीक है, ये भी समझ में आया क्यों वायरल हुआ था नमामि गंगे। हाँ, सो दिस इज द थीम इज स्ट्रॉन्ग लॉन्चेड। दैट मीन्स हर कोई जाने इसके बारे में। ये देखो, हम लोग सोचते हैं कि ये जो मोदी कर रहा है उसका खुद का प्रचार कर रहा है, लेकिन नहीं, एक्चुअली दिस शुड बी नो एवरी इंडियन। हम नमामि गंगे हम क्लीन क्यों कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है भाई, इसीलिए तो इसको प्रचार किया गया। लेकिन लोग उल्टा समझते हैं ना, ये मोदी अपना प्रचार कर रहा है। लोग जैसे समझ लें, जैसे लें, उनका मर्जी। दिस IEC एक्टिविटीज एग्जीबिशन ड्यूरिंग माघ मेला, हाँ इट्स सो इम्पोर्टेंट। IEC activities means recreational and ecological center activity। This is the activity that means educational activities or the recreational activities, these are also displayed in some मेला। जैसे कि आपका यहाँ पे कुछ मेला लगा हुआ है, तो उसमें क्या आता है, वो मीना बाजार आता है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल लगा होता है कि नहीं। तो गवर्नमेंट में क्या किया, जहां पे भी मेला लगता, वो जैसे कुंभ मेला लगता है, कहीं पे माघ मेला लगता है, गंगा के रिवर किनारे में होता है, हर साल होता है। जैसे कि श्रावण के महीना में होता है ना, जो कवाड़िया लोग लेके जाते हैं पानी शिव मंदिर में चढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ ये ऐसे माघ मेला होता है, कुंभ मेला होता है, आप तो सुने होंगे कुंभ मेला के बारे में। तो इधर जहां पे भी मेला लगा, तो गवर्नमेंट में अपना स्टॉल लगा दिया उधर। उस स्टॉल में क्या था, ये नमामि गंगे का एडवर्टाइजमेंट। तो वहां पे लोग जा रहे हैं तो वो देखेंगे, तो उसका प्रचार होगा, है कि नहीं, लोगों को जागरूकता फैलेगा। ये सारे पैसे भी खर्च हो रहा था। एंड दिस इज पार्ट ऑफ द नमामि गंगे प्रोग्राम। सो नमामि गंगे प्रोग्राम इज ह्यूज। हम जितना सोचते हैं उतना है नहीं, उससे बहुत ही ज्यादा है मोदी का प्लान। एंड लास्ट, व्हिच इज सपोर्ट नीडेड।
किसका सपोर्ट चाहिए? यस, गंगा रिजुवेलाइजेशन, ए वेरी मैसिव टास्क। रिजुवेलाइजेशन इसका मीनिंग पता है आपको? जुवेनाइल, जुवेनाइल सुने हैं नाम? जुवेनाइल, जुवेनाइल मीन्स छोटा सा बच्चा, जिसका मन में कुछ खराब, मतलब पॉल्यूशन नहीं होता है, मतलब उसका बच्चा मन का सच्चा बोलते हैं ना, मतलब उसमें कुछ ऐसे होलीनेस होता है, उसके मन में कुछ भी पॉल्यूशन नहीं होता है। तो दिस जुभे उसको बोलते हैं जुवेनाइल, हुज आर जस्ट बॉर्न एंड ट्रूली होली एंड नो प्योर, फुल प्योर है, देर इज नो पॉल्यूशन एंड जस्ट बॉर्न, रीबॉर्न, री जस्ट बॉर्न, अभी अभी पैदा हुआ है, उसका मन में कुछ मतलब खराब नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हु इज प्योर, प्योर सोल है वो। तो गंगा को भी ऐसे करना है, रीजुवेलाइजेशन। गंगा तो एक बार जन्म हो गया था, भागीरथी ने उसको लेके आया था, जो भी है गंगोत्री में। तो एट द ओरिजिन ऑफ द गंगा, एट द गंगोत्री ग्लेशियर्स, वहां पे गंगा क्या होता है, जुवेनाइल बनता है, दैट मीन ओरिजिन, वहां पे उसका बार्थ होता है। एट दैट पॉइंट, ग्लेशियर पॉइंट, गंगा इज प्योर, फुल्ली प्योर एंड फुल्ली होली एट दैट पॉइंट ऊपर। लेकिन जब ऊपर से नीचे बहते बहते आता है, ऐसे जैसे नीचे बहते बहते आता है, द होलीनेस गेट डिक्रीज्ड ड्यू टू द एडिशन ऑफ द पॉल्यूशन, एंड हियर इन दिस होल भी पूरा पॉल्यूटेड हो गया। सो आवर प्लान इज द मेक फुल गंगा एज इट बॉर्न एट द इनिशियल, पहले जहां पे उत्पत्ति होता है गंगा, वहीं पे जैसे उसका पवित्रता था, ऐसे पूरा थ्रू आउट द रिवर वी आर गोइंग टू इंटेक्ट। एंड दिस इज नॉट ए सिंगल टास्क, नॉट ए इजी टास्क। ऐसे हो सकता है? This is not a easy task and it is very massive task. And for this completion of the task, ये काम करने के लिए support needed. Who support needed? Support of all Indians, all humans, all politicians. जितना भी सपोर्ट होता है, as in terms of education, in terms of money, in terms of जो कुछ भी है, फुल सपोर्ट नीडेड ऑफ फॉर ऑल अदर्स, पूरा सबका ये सपोर्ट चाहिए। कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, लोकल बॉडी, इवन पीपुल एंड पब्लिक, सबका साथ, सबका विकास, जो मोदी फैला रहा है ना, दिस इज द मेन मीनिंग। इट इज नॉट द जस्ट क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अरे क्या विकास हो गया 5 साल में, 10 साल में, तो विकास करना इतना इजी थोड़ी है कि मोदी बोल दिया विकास हो गया। वी जस्ट इंप्लीमेंट दिस रूल फ्रॉम द टॉप टू लोकल बॉडी, जो सेंटर में है, सेंट्रल मिनिस्टर से लेके स्टेट में स्टेट मिनिस्टर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, ये गोइंग टू पब्लिक, इंडिविजुअल, पूरा एक एक घर तक उसको जो अवेयरनेस फॉर द क्लीनिंग ऑफ द रिवर गंगा, और अवेयरनेस फॉर स्टॉप द पॉल्यूशन, दैट में दैट मस्ट बी रीच टू द पब्लिक and higher to higher authority to lower authority and to the public finally. Then also, then the total work plan can be executed. Which plan? This, in this case, Namami Gange, and for other things also, but here we are just going to for the study of Namami Gange. This Namami Gange plan is executed with the support of all of us. Is that clear? मतलब आप लोग समझ में आया व्हाट इज नमामि गंगे? एनी डाउट्स कुछ? हाँ, ये बोला ना, ये इसे रिजुवेलेशन करना इतना इजी नहीं है, एंड इस भेज मैसेज टास्क ये कंप्लीट 100% कभी नहीं होगा। जब होगा जब आदमी मतलब क्या बोलते हैं, पूरा समझ जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा, या करप्शन जब जीरो हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट प्लान इज देयर, एजुकेशन इज, इफ इज एग्जीक्यूटेड 60%, देन ऑल्सो इट इज वेरी मच वेरी गुड फॉर आवर कंट्री। अभी तो ये 10%, 20% भी एजुकेशन नहीं हो रहा है, इतना पैसे खर्च हो रहा है, अभी तो 20% भी एजुकेट हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। दिस इज प्लान है, ये ऐसे है नहीं कि जरूरी। तो ये सारे चीज, दिस इज कम्स अंडर नमामि गंगे। नमामि गंगे, ये जो प्लान है, इन इन दिस प्लान मैं कुछ, व्हाट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ दिस गंगा एक्शन प्लान? देयर इज 3 स्टेजेस, गंगा एक्शन प्लान 1, उसके बाद गंगा एक्शन प्लान 2,
फिर आता है जो थर्ड है उसको बोलते हैं नमामि गंगे। एंड नमामि गंगे अगेन डिवाइड इनटू 4 फेजेस। फिर 4 फेज हुआ है। ठीक है? यू कैन गो थ्रू दिस स्लाइड्स। आप स्लाइड में भेज देता हूँ, आप अच्छे से पढ़िए और नोट बनाइए। आप क्या करना है ना, सिर्फ ओवरलुक करने से ये याद नहीं रहेगा। आप खुद लिखोगे तभी आपको याद रहेगा। लेकिन आप अभी तो आप अच्छे से समझ गए ना, तो आप लिख सकते हो कुछ। हुँ। एंड दिस नमामि गंगे इज़ ओवर। नेक्स्ट आ गया आपका, और एक है जमुना रिवर के बारे में पढ़ना है हमको। हाउ दिस जमुना रिवर, हाँ, जमुना एक्शन प्लान, जमुना को साफ करने के लिए उसका भी एक्शन प्लान है। दैट इज अनदर क्लास। ओके, सो और कुछ बोलना है या कुछ मन में है तो बोल सकते हैं। लेकिन देखो एक्चुअली जो लोग हैं ना, वो मोदी का जो प्लान है उसको उल्टा भी ले रहे हैं लोग। ठीक है कि नहीं, समझ खर्च कर रहा है, ठीक है, मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या करें, सपोर्ट तो मिल रहा है तभी ना। हम्म, हाँ, कुछ नहीं हुआ बिकॉज वायरल करने के लिए पैसा खर्च नहीं किया ना उसने। बस पैसा खा लिया बस। इतना एसटीपी लगा दिया, इतना डब्ल्यूपी लगा दिया, बस इतना ही। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किया था, ये म्यूनिसिपल सीवेज प्लांट लगाया था एक्शन प्लान 1 में। और एक्शन प्लान 2 में क्या किया, और कुछ लगा दिया जो टीवी ट्रीज था, उतना ही तो किया था। उसको कौन सा लोगों को पता है, कुछ भी रूल स्ट्रिक्ट नहीं था। हाँ, और एक क्या था जो क्रिमिशन हो रहा था, उसके लिए रूल बनाया था कि हाँ डायरेक्ट बॉडी नहीं फेंक सकते। ये 3 काम किया था बाकी पहले। और 2015 से स्टार्ट हुआ है, ये कितना हुआ है, 5 साल हुआ है। हम्म, हाँ, 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 ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। हाँ, मैं प्रॉपर उड़ीसा से हूँ। जो महानदी रिवर है ना, वो उससे 40 किलोमीटर दूर है मेरा गांव। तो हीराकुद डैम जो है उससे पास में ही है। और अच्छा, ओके, उड़ीसा कहाँ से है वो? अच्छा, प्रधान। हाँ, प्रधान है तो हमारे यही आसपास का ही होगा, मतलब 80-100 किलोमीटर के आसपास ही है। हाँ, 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 वो भी वही है, वो आसपास है, हीराकुद का आसपास ही है। महानदी, चांद टाइटिल हो गया, ये प्रधान हो गया, ये आसपास का है। और कोई दूसरा होगा जैसे कि मल्लिक, इस टाइप का, इस टाइप का होगा तो वो ईस्ट उधर हो जाएगा। कौन सा साइड, पुरी, सुना होगा नाम, पुरी। हाँ, पुरी से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो 450 किलोमीटर से हुए है, पूरा दूर ही है। पूरी कोस्टल एरिया हो गया हमारा, इधर आ गया छत्तीसगढ़ साइड में, ऊपर। हाँ, मिडिल में हैं हम लोग। आप प्रॉपर यहीं क्या है या मतलब? अच्छा, गोधरा से आप कभी गए अच्छा, हम्म, उड़ीसा गए कभी? अच्छा, उड़ीसा आप एक बार जाके देखो।